Hello children, how are you all? Children, I hope you all are fit and fine, watching the videos, completing your work, and children, you all are reading the chapters, learning the spellings. So children, I have told you it is very important to read the chapter and learn the spellings. As you know children, in computer you have quite big spellings and difficult spellings, as well as you have to learn the meaning also. You all are coming across these words or spellings for the first time. So please read and the chapter, learn the spellings and try to understand the meaning of these spellings. Then only you will be able to understand the concept. So children, with this I welcome you all to computer class 2. So computer class 2. Now children, in this class we are going to do our next chapter, and children, I will be telling you later what is the next chapter. Before that, let us revise. So children, in the previous video we were doing chapter 5, that is monitor. So children, by now we have studied about two main parts of the computer. As you know children, in our last two chapters we have studied about two main parts of the computer. As we have already studied, there are some parts of the computer which are very important for us, or which are very important for the working of a computer. So without which children, it is not possible to perform any task using a computer. As we know, computers work in a system. Computer हमेशा system में काम करता है, where 4 to 5 parts are very important, and these 4 parts are always involved while working on a computer. So among these children, keyboard and monitor we have already studied. Now we are going to read about these in detail, means और भी आगे we are going to read about it. So children, in the next previous chapter we had studied about monitor. Monitor is one of the important part of a computer, and as we know children, monitor is the part of the computer which is used to display something. Monitor को use करके हम किसी भी चीज़ को display करते हैं या show करते हैं. Display करने का मतलब है to show. तो using this part of the computer we show everything or display everything, and it is easier for you or me to work on a computer. If something you are doing and it is displayed on your screen children, it is easier for you to work on that. So यहाँ पे कंप्यूटर में जब भी हम कोई भी काम करते हैं, चाहे गेम्स खेलते हैं, ड्राइंग करते हैं, कलरिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, या फिर हम कोई मीटिंग अटेंड करें, तो हम इसको सारी चीज़ें दिखाई देती है. तो दिखने से हमें आसानी होती है और हम कंफर्टेबली कर पाते हैं. तो हियर चिल्ड्रन, सो मॉनिटर इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच इज़ यूज टू डिस्प्ले एनीथिंग. नाउ चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द सेम. हम बाकी पार्ट्स के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं. तो हियर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड हाउ दे आर डिवाइडेड इनटू टू. So how these things are divided into two, that we are going to study here. So जो भी जिसके बारे में भी अभी तक हमने पढ़ा, उन चीज़ों को हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं. What are these two things? We are going to learn in our next chapter. So children, here we are going to start our next chapter, that is chapter 6. In chapter 6 children, we have our next topic, that is input and output devices. So in this chapter, that is chapter 6 children. यहाँ पे आज हम चैप्टर 6 शुरू करेंगे. इनपुट, INNPUT, पुट, एंड आउटपुट, OUT, आउट, PUT, पुट, डिवाइसेस, DEVICES, डिवाइसेस. चलो इसको भी हम कैपिटल से लिख लेते हैं. इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. तो सबसे पहले चिल्ड्रन, बिफोर reading about input and output devices, let us know what is device. We have already discussed about device children. हम पहले भी device के बारे में जान चुके हैं. When we were studying first chapter from the beginning, class 1 से हम device के बारे में पढ़ते आए. तो what is a device? So children, device is a machine. Device is a machine. जो device है एक तरह का machine होता है. So what is a machine? A machine is something which makes our work easy and comfortable. मशीन की वजह से our life has become comfortable and fast. हमारा लाइफ कंफर्टेबल हो गया है, ईजी हो गया एंड फास्ट हो गया है. द वर्क विच वी यूज टू टेक आवर्स फॉर completing children, we can do these works without any energy, wasting our energy, or without consumption of any energy. We can do easily by using different electric appliances. जितने भी electric appliances होते हैं which are made by man children, these appliances or machines or devices make our life
फास्ट, ईजी एंड कंफर्टेबल। हम एक साथ 2-3 काम कर सकते हैं। हम फ्रिज में अपना सामान रख करके कुछ काम कर सकते हैं, मशीन में कपड़े धो करके काम कर सकते हैं, और मशीन में एक तरफ हम कपड़ा धो रहे हैं, एक तरफ हम किचन का भी काम कर सकते हैं। दैट मीन्स कि मशीन में ओनली वी हैव टू पोर वाटर, वी हैव टू पुट डिटर्जेंट एंड वी हैव टू पुट क्लोथ्स। अब उसके बाद हमें स्विच ऑन करने की देरी है एंड एवरीथिंग इज डन। वहाँ वी डोंट हैव टू सेट देयर, वी डोंट हैव टू कंटिन्यूसली सेट विद इट, और कोई भी हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती है, बल्कि वी कैन बाय दैट टाइम क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, वी कैन डू सम अदर वर्क। हम दूसरी तरफ अपना कुछ और काम कर सकते हो। तो हियर चिल्ड्रन वी आर डूइंग एनीथिंग विदाउट आर मैनुअल पावर, हमारे मैनुअल पावर को नहीं यूज़ कर रहे, हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, काम भी हमारा हो रहा है, और उसके साथ एक साथ हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। हम उसको भी देख पा रहे हैं कि मशीन इज़ वॉशिंग द क्लोथ्स, मतलब हमने उसको कर दिया, फिर उसके बाद हम जाके दूसरा काम कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद इस तरह से हमारा काम आसान हो जा रहा है और हमें थकना नहीं पड़े। वी आर नॉट गेटिंग टायर्ड बिकॉज वी आर नॉट फिजिकली वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। हम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ मेहनत ना करने की वजह से हमारा एनर्जी भी लॉस नहीं हो रहा है, एंड वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इन अ डे। हम दिन में बहुत सारे काम फिर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, बिकॉज वी आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम समवेयर। तो व्हाट आर दीज समवेयर? दीज आर द मशीन्स विच हेल्प अस इन वन और इन डूइंग वन और द अदर टास्क होल डे। पूरे दिन हम जितने भी काम करते हैं, कोई ना कोई मशीन हमें हेल्प करता है। माइक्रोवेव में आराम से खाना गर्म कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, और उसके बाद हम मिक्सर ग्राइंडर से मिक्सिंग कर सकते हैं, जूसिंग, मतलब हर काम हमारा जल्दी हो जाता है और हमारा काम कम हो गया है। तो हियर चिल्ड्रन इन दिस वे वी आर एबल टू मेक आवर लाइफ ईजी एंड कंफर्टेबल। हमारा लाइफ आसान हो गया है, कंफर्टेबल भी हो गया है, काम भी हमारा जल्दी हो जाता है और फास्ट हो जाता है। सो इन दिस वे चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दीज डिवाइसेस। नाउ व्हाट आर दीज डिवाइसेस चिल्ड्रन? These devices are also of two types. One is input and the other one is output. एक को हम input device कहते हैं और दूसरे को output device कहते हैं। तो you must be wondered कि अब कुछ और चीज़ें हमें पढ़नी होगी। There is nothing which we are going to read in addition. हमें यहाँ पे कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है in the form of different parts of computer. We have studied about different parts of computer. Now we are going to divide these parts into two different categories. अब यहाँ पे हमारे पास दो different categories हैं. Now we are going to divide these parts in two different categories. One is input and the other is output. तो हमने machines के बारे में पढ़ा, तभी हमने जाना कि what is a device. Device is a kind of machine. डिवाइस या मशीन एक ही होता है जो हमारे काम को आसान बनाता है, हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है और हमारे काम को फास्ट बनाता है। इन दिस वे चिल्ड्रन, द मशीन और any device has made our life easy, comfortable and fast. Now, and these devices are divided into two. So let us first of all understand what are these devices. ठीक है, अब सबसे पहले we will talk about input device. तो let us see children, सबसे पहले today we are going to read our first chapter. हम अपना सबसे पहला पेज जो है चैप्टर 6 का वो पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ चैप्टर पेज नंबर 39 पढ़ेंगे। सो हियर टुडे वी आर गोइंग टू रीड ओनली पेज नंबर 39. तो हमारे चैप्टर 6 का फर्स्ट पेज है पेज नंबर 39. सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर, first of all, in this chapter we are going to cover the following topics. What are the topics which we are going to cover here? We are going to cover topics to be covered are topic covered, C-O-V-E-R-E-D, covered, R-A-R-E-R. यहाँ पे जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे आर लिखने की जरूरत नहीं है, टू बी कवर्ड आर. फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. सबसे पहले हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे. इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे. सो चिल्ड्रन, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक अबाउट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. फर्स्ट टॉपिक है हमारा. देन सेकेंड टॉपिक in this chapter which we are going to discuss is children, you can see first, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में. that is input device. we will be reading in detail about input device. So under this children we will be reading about different parts of the computer. what are these? if you talk about input device children, यहाँ पे हम कीबोर्ड पढ़ेंगे about which you already know. आपने पहले से पढ़ा है what is a keyboard. यहाँ पे हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट कीबोर्ड एंड वी वेरी वेल नो व्हाट इज अ कीबोर्ड. ओके, सो कीबोर्ड, माउस, MOUSE,
U-S-E, mouse, joystick, this is joystick. Then children, input device में हमारे पास है scanner, S-C-A-N-N-E-R, scanner. Then we have microphone, and then we have webcam, C-A-M, cam. So children, these are the different input devices about which you have already studied, but here you are going to read it under another topic, that is input device. हम इसे input device के तौर पे पढ़ने जा रहे हैं और we are going to read about these as a input device. Then children, next is हमारा next topic है output device. So what is output device? We will be reading about output, put device, D-E-V-I-C-E device. तो आप यहाँ पढ़ेंगे output device के बारे में. तो what is output device? You will learn, and then you will also learn the different types of output devices. So different type of output devices about which we are going to read here are monitor, M-O-N-I-T-O-R, monitor, about which you have already studied. Then printer, P-R-I-N-T-E-R, printer, and speaker. So here we have only 3 things under output device. तो input device में तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन output device में हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ें हैं about which we are going to read. So in this chapter children, we are going to read about input and output devices. Then we will be reading one by one what are input devices and what are output devices. So with this children, let us start today's class. So here children, in this chapter we will be first discussing page number 39. So आज हम पढ़ेंगे page number 39. In page number 39 children, we have input devices. So first of all, we will write here input device. So our first chapter of this chapter is input, D-E-V-I-C-E, device. So children, input device. Now before starting to learn about it children, we are going to take out a word from these two words. इन दोनों वर्ड्स में से पहले हम एक वर्ड लेंगे, वो है इनपुट. हम इनपुट को अकेले लेंगे बिकॉज आफ्टर रीडिंग द चैप्टर मेनी टाइम्स ऑल्सो एंड डिस्कशन ऑल्सो यू विल बी हैविंग कन्फ्यूजन बिटवीन इनपुट एंड इनपुट डिवाइस. तो सबसे पहले वी शुड नो व्हाट इज़ इनपुट. हमें सबसे पहले यहाँ पे जानना है व्हाट इज़ इनपुट. इनपुट क्या है? व्हाट इज़ इनपुट? सो चिल्ड्रन, अभी तक वॉट एवर वी हैव studied and understood about the computer is that computer is a man-made device. हमको पता है कि कंप्यूटर एक man-made device है. सबको पता है कि कंप्यूटर एक man-made device है. man-made word का मतलब होता है, क्या होता है man-made word का मतलब? man-made means children something which is made by man. all those things which are made by man. तो जो भी चीज़ें man बनाता है we call it as man-made machine. man-made machine, M-A-C-H-I-N-E, machine. तो यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में if you talk about computer children, it is a man-made machine. So here we are talking about computer, and then we are going to relate this word with this. So as computer is a man-made machine children, so let us recall whatever we have studied about computers in our previous chapters. अभी पीछे वाले chapters में हमने जो भी कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है एक बार उसको हम रिवाइज कर देते हैं. जैसे कि children firstly we understood कि computer is an electronic machine. So we will write it is a man-made machine. Then it is an electronic machine. Computer is an electronic machine. M-A-C-H-I-N-E, machine, इलेक्ट्रॉनिक मशीन. तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. ठीक है. अब कंप्यूटर एक मैन-मेड मशीन है, उसके बाद कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. अब चिल्ड्रन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक? बहुत बार बताया है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स समथिंग विच रन बाय इलेक्ट्रिसिटी. वो सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं. All these machines are known as electronic machine. Whatever machines you have in your house children, you have many machines
nowadays we have different types of machine in our house to make our work easy and comfortable, and हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए होने के लिए या हमें कंफर्ट मिलने के लिए we have lot of machines starting from fan, AC, cooler, washing machine, refrigerator, toaster, oven, then we have a car, scooter, all these are machines. And but स्कूटर कार आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है, उसके अलावा जो हमारे घर में बाकी चीज़ें सब इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। तो मशीन के बारे में मैंने बोला तो ये सारी आ गई, लेकिन जो व्हीकल है वो, लेकिन उसमें भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, आपका ट्रेन इलेक्ट्रॉनिक होने लगा है। तो चलो हम व्हीकल को हटा देते हैं। अदर देन व्हीकल स्टूडेंट, ऑल द मशीन्स विच वी यूज़ इन आर हाउस आर इलेक्ट्रॉनिक, सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। मिक्सर ग्राइंडर हो गया, आपका आयरन हो गया, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। दैट इज़ वाई वी कैन से दीज आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। नाउ चिल्ड्रन, तो these 2 points we have studied till now. Now children, then we also have studied that a computer is, there is no comparison between a man and a computer, we very well know, but we have studied some differences between man and computer in chapter 3. In that we compared man with computer, that is man versus computer. Our chapter was man versus computer. So in that children, we came to know, or we know that the computer is इन मैनी वेज कंप्यूटर इज़ बेटर देन अस। बहुत सारे मामलों में कंप्यूटर हमसे बेटर है, और शायद इसीलिए हमने कंप्यूटर बनाया था कि वो हमसे बेटर काम करे और हमारे काम को आसान बनाए। जैसे कि बच्चों, ये हमसे काम बहुत फास्ट करता है, और जो भी वो काम करता है वो उसे याद रखता है। ऑल एवरीथिंग कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी एंड इट कैन रिमेंबर द थिंग्स फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए याद करता है। वो साल, 2 साल, 4 साल, 20 साल, हमेशा के लिए वो उसको याद रखता है, कभी भी भूलता नहीं। देन यू कैन स्टोर ऑल द डेटा विच यू गेट फ्रॉम द कंप्यूटर इन द कंप्यूटर। स्टोरेज भी अच्छा है, आपको ना फाइल्स की ज़रूरत है, ना फाइल के मेंटेनेंस की ज़रूरत है, आपका आराम से चीज़ें कंप्यूटर में स्टोर हो जाती हैं। इट नेवर गेट्स टायर्ड, हम इंसान कुछ देर काम करने के बाद थक जाते हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर कैन डू एनीथिंग वेरी फास्ट विथ मोस्ट एक्यूरेटली और विदाउट मेकिंग मिस्टेक। वो कभी गलती नहीं करता और एकदम एक्यूरेटली काम करता है, कभी भूलता नहीं है, कभी थकता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो ऑल दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द चैप्टर। बट चिल्ड्रन, कंप्यूटर इज़ never better than man. We cannot say it is better than man. So there are few points where the computer lacks. कंप्यूटर लैग करता है, और वो बहुत बड़ी बातें हैं। जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकता, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन बीइंग। तो जो भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं, इट इज़ मेड बाय ह्यूमन बीइंग इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो वी गिव द इंस्ट्रक्शंस, देन ओनली इट परफॉर्म्स अ वर्क। तो हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, दीज इंस्ट्रक्शंस आर मेड इनटू अ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, एंड देन इट इज़ फेड इनटू द कंप्यूटर एंड अकॉर्डिंगली कंप्यूटर वर्क्स। उसके बाद भी हम जब तक ऑन नहीं करेंगे, कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। क्या आपका कंप्यूटर अपने आप ऑन होता है? आप अगर उसके बगल में खड़े होकर उसको बोलो डू दिस, डू दैट, गेट स्विच्ड ऑन, क्या वो हो जाएगा? नेवर, इट नेवर गेट्स स्विच, इट कांट बी स्विच्ड ऑन इटसेल्फ। वो अपने आप स्विच ऑन नहीं होता है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन अस। तो बहुत सारे काम अच्छे करने के बाद द मेन थिंग इज इट कैन नेवर वर्क इंडिपेंडेंटली। वो खुद से काम नहीं करता। एक मशीन तो मशीन ही होती है, उसे तो हमें चलाना ही पड़ता है। इसलिए यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है, बिना हमारे इंस्ट्रक्शंस के कोई भी काम नहीं करती है। तो चिल्ड्रन, द वर्ड इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है गिविंग कमांड। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी को इंस्ट्रक्ट करना, किसी को बताना या किसी को कमांड देना, ठीक है। तो ये करो, वो करो, ये कहना इज अ कमांड, तो इसको हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो व्हाट आर दीज इंस्ट्रक्शंस चिल्ड्रन? दीज इंस्ट्रक्शंस are given to the computer and then computer performs a work. So what do we call these instructions? What is this these instructions? These instructions can be data, इसे हम data कह सकते हैं, data कह सकते हैं, the data or the information which is given to the computer, and these two words are known as input. हम इन दोनों को इनपुट कहते हैं। हम इन दोनों को क्या कहते हैं? इनपुट। सो वो सारे इंस्ट्रक्शंस और डेटा जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं टू कंप्लीट एनी वर्क और टू कंप्लीट एनी टास्क और टू डू एनी टास्क, इसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज इनपुट। तो जो भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन हम इस कंप्यूटर को देते हैं, इसे हम इनपुट कहते हैं। सो चिल्ड्रन, अ कंप्यूटर इज अ मैन मेड मशीन, इट कैन नॉट परफॉर्म इवन अ सिंगल टास्क विदाउट the instruction of man. Until or unless you provide instructions to the computer,
it will never be able to perform even a smallest task or a simplest task. तो यहाँ पे कोई भी काम करने के लिए हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है, एंड दीज इंस्ट्रक्शंस और डाटा विच आर गिवन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट. इसे हम इनपुट कहते हैं. अब इसे क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं. तो डियर चिल्ड्रन, वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस और डेटा यू प्रोवाइड टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क is called input. So here we are going to read about this input. That is why I told you the computer is dependent on man. Computer can never do any task itself. वो खुद से अपना कोई भी काम नहीं कर सकता. जो भी वो काम करता है, बड़े से बड़ा काम करता है, वो खुद से नहीं कर सकता. वो हम जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो तब वो काम करेगा. तो जब तक हम उसको डेटा नहीं देंगे, इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, तब तक वो काम नहीं करेगा. सो हियर द डेटा और द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर टू डू एनी टास्क और टू कंप्लीट एनी टास्क इज कॉल्ड इनपुट. इनको हम इनपुट कहते हैं. तो इन सारे इंस्ट्रक्शंस और डेटा को जिसको हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, वी कॉल इट एज इनपुट. सो चिल्ड्रन, नाउ लेट अस टॉक अबाउट इनपुट. सो अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज इनपुट. Input is instruction or data which is given to the computer in order to perform any work. Until or unless you provide any data or instruction to the computer, it can't do even a single task. So children, it is very important to provide input to the computer. So now let us understand children the definition of input. अब हमने यहाँ पे इनपुट डिवाइस में से इनपुट लिया. व्हाट इज इनपुट? सो इनपुट, सो द टर्म इज इनपुट. अब नाउ चिल्ड्रन, बाय गिविंग जस्ट an instruction you cannot perform a work. So you need to give number of instructions, you need to give set of instructions. So ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जिससे आप किसी काम को पूरा कर सकते हो. एक इंस्ट्रक्शन या दो इंस्ट्रक्शंस देने से नहीं होगा. यू हैव टू गिव नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस आर टुगेदर नोन एज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो हम इसे कहेंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. सो हियर द डेफिनेशन ऑफ इनपुट डिवाइस यू विल राइट इज द set of instruction, the set, S-E-T, set of instruction given, the set of instruction given to the computer to perform any task, to perform any task, T-A-S-K, task. Now let us understand the words which we have involved in this definition though. So let us understand each and every word I have written here. So this is the definition of a input device. The set of instruction, ये set है तो instructions हो जाएगा, given to the computer to perform any task. So children, the set means group of instruction. मतलब कुछ instructions को मिला करके हम यहाँ पे कंप्यूटर, एक या दो इंस्ट्रक्शन से तो चलेगा नहीं, तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शन जिससे हम किसी भी काम को कंप्लीट कर सकते हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ मिला करके हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो गया कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गए जिसको मिला करके हम किसी भी काम को कंप्लीट करते हैं. तो ये द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन टू द कंप्यूटर, जो हम कंप्यूटर को देते हैं टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म यानी करना, टू परफॉर्म एनी टास्क, किसी भी काम को करने के लिए. इट इज नोन एज इनपुट. अब इसको हम कहते हैं इनपुट. सो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी वर्क. सो चिल्ड्रन, जब भी हमें कंप्यूटर से कोई भी काम करना होता है तो हम उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं. इन सब इंस्ट्रक्शंस को मिला करके हम कहेंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस थ्रू विच वी कैन कंप्लीट एनी वर्क. किसी भी काम करने के लिए एक दो इंस्ट्रक्शंस देने की तो काम चलेगा नहीं, तो हम बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिनको मिला करके एक पूरा काम कंप्लीट होता है. अगर हम एक प्रोग्राम की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल MS पेंट, अगर हम MS पेंट की बात करते हैं चिल्ड्रन, विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस चैप्टर. व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट MS पेंट चिल्ड्रन? क्योंकि यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रोग्राम और द इंस्ट्रक्शन. तो MS इंस्ट्रक्शंस में, MS पेंट में जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं,
एक पूरा MS पेंट प्रोग्राम बनाने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी काम हम वहाँ करते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए उन सारे को मिला करके हम उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहेंगे। तो जो एक प्रोग्राम MS पेंट प्रोग्राम है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बना हुआ है, तो वो भी एक तरह का इंफॉर्मेशन है, एक तरह का इंस्ट्रक्शन है विच वी आर प्रोवाइडिंग टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म द वर्क ऑफ ड्राइंग एंड कलरिंग। अगर हमको ड्राइंग एंड कलरिंग करना है तो ये जो पूरा आपका एक प्रोग्राम जिसे हम MS पेंट कहते हैं, उसमें हमने बहुत सारे इसी तरह के इंस्ट्रक्शंस को मिलाया है और उसे मिला करके हमने एक प्रोग्राम बनाया। तो हमने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिला के प्रोग्राम बनाया, तो जो जितने भी इंस्ट्रक्शंस हमने यहाँ मिलाए हैं इसे हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहेंगे। तो आफ्टर कंबाइनिंग ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस वी मेक अ कंप्लीट प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम इज कॉल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप उस प्रोग्राम को पेंट कह सकते हैं या पेंट प्रोग्राम इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बना हुआ है। तो इन दिस वे चिल्ड्रन हियर यू कैन से कि कोई भी इंस्ट्रक्शन विच वी गिव टू परफॉर्म एनी टास्क, दीज इंस्ट्रक्शंस आर नॉट 1 or 2 इंस्ट्रक्शन, दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिला करके हम एक सेट बनाते हैं और जिसके थ्रू हम किसी भी काम को कंप्लीट करते हैं, और इन सबको मिला करके इस इंस्ट्रक्शंस को हम एक नाम देते हैं और इन पूरे इंस्ट्रक्शंस को हम इनपुट कहते हैं। इनपुट यानी प्रोवाइडिंग डेटा टू द कंप्यूटर, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। तो किसी भी काम करने के लिए जो हम डेटा या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं। नाउ चिल्ड्रन, अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमें अब इनपुट कैसे हम प्रोवाइड करेंगे। हम इनपुट कैसे प्रोवाइड करते हैं? वी प्रोवाइड इनपुट थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। सो वी प्रोवाइड इनपुट थ्रू द, सो चिल्ड्रन दिस इज इनपुट। इनपुट मीन्स the set of instructions given to the computer to perform any task. Now children, we have understood about input कि all those instructions which are given to the computer to perform any task are called input. Now children, how will you give the instructions to the computer? The second question is कि you have understood about input, now you need to give these instructions to the computer or input these instructions. How you will input these instructions, children? So now here another word arises, that is input device. So what are input devices? Input is the set of instruction and the device used, device used to give instructions, give input, instruction कह सकते हो या input कह सकते हो, to the computer. Give the device used to give input is called input device. So children, firstly you have to understand what is input. Input is the set of instructions given to the computer to perform any task. These are the set of instructions which are given to the computer to perform any task. Now to give these instructions you need different devices. What are these devices, children? These are the devices which are used to give instructions or input to the computer. अब input देने के लिए हमें कुछ devices की ज़रूरत होती है, जिन devices की ज़रूरत होती है उसे हम input device कहते हैं. Now let us understand the example. What are the example? Which all devices we use to give the instruction, children? या input देने के लिए हम कौन सारे से devices का use करते हैं? These devices are, first of all is keyboard. So children, if you want to add 2 plus 1 or 2 plus 4, 2 plus 5, you have to give the data 2 plus 4, 2 comma plus comma 4 to the computer using the keyboard. If you want to write something on the computer, you will type the letters from the keyboard. So whatever you want to do on the computer, children, you choose some devices through which you can give the instructions. So these devices are called input devices. So here the next input device can be mouse. Mouse से आप किसी चीज़ को select कर सकते हो, mouse से instructions दे सकते हो. You use mouse while drawing and coloring. You use mouse while playing. Then joystick. You use joystick also for playing games. Then you can give your instruction in the form of voice also.
आप आवाज़ से भी अपने इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो. दिस वॉइस कैन बी गिवन थ्रू माइक्रोफोन. सो हियर माइक्रोफोन इज अनदर इनपुट डिवाइस. माइक्रोफोन. सो माइक्रोफोन इज अनदर इनपुट डिवाइस. माइक्रोफोन जो है वो एक और एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस का. देन चिल्ड्रन यू कैन गिव इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स एंड वीडियोज ऑल्सो. सो वेबकैम इज अनदर एग्जाम्पल. वेबकैम और स्कैनर. स्कैनर यू कैन से, स्कैनर से आप फोटोज दे सकते हो, और वेबकैम से यू कैन सेंड द इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज. आप वीडियोज़ के फॉर्म में भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो. सो चिल्ड्रन वेबकैम स्कैनर भी हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गिव द इंस्ट्रक्शन. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ devices using which you can give instructions to the computer. So dear children, with this we have come to the end of this video. In this video children, we studied about input and input devices. So children, here we end the video with input and input devices. We will meet once again in our next video. Then we will discuss further topics in the chapter. So children, till then, thank you and have a nice day ahead.